Welcome everyone present here. Students, you know already that after half yearly examination, we are on the verge of starting a new chapter, and the very important and crucial chapter is the climate of India. As the name is indicating, we have to know about the climate of India. भारत की जलवायु क्या है एंड व्हाट आर द डिफरेंट सीजन्स, किस तरह के यहाँ ऋतुएं मिलती हैं, उसके बारे में डिटेल से इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे. नाउ लेट अस बिगिन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड हैव द मीनिंग ऑफ क्लाइमेट क्लियर कट इन आवर माइंड. क्लाइमेट का मीनिंग क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, वो हमें सबसे पहले जानना होगा. Climate refers to the average weather condition and variation over a large area for a long period of time, more than 30 years. There are many types of climates: monsoon type of climate, desert type of climate, Caribbean type of climate, tundra type of climate, savanna type of climate, Mediterranean type of climate. There are at least 12 type of climate, and this climate division has been made by the great geographers like Thorn, Thwaite, Tiwartha, and those geographers belong to Germany. But we have to not go details about those things. First of all, we have to get the clear-cut meaning of the climate. Jalvayu kya hai? Children, you might be experiencing and noticing that in different month of the season, in different month of the year, you may noticing that weather conditions are different. In November, December, you feel cold weather condition. In May, June, you may feeling summer weather condition, and in July, August, September, you may be experiencing rainy season. So we find that the weather condition are different in different months of the year, and this weather condition in a particular month circulate every year, and from a longer duration of time we have been noticing that in January, February and December month there is cold season. In May, June there is summer season. In September, July, August, September there is rainy season. So these types of weather condition is prevailing in India for very long period of time. Even you ask from your grandfather, grandmother, they will see that yes, these types of weather condition used to prevail there, but there is somehow slightly change. Although there used to be summer, rainy and cold season, but there is slightly change in their intensity. But have you ever thought that this weather condition is going to form a climate? ये जो खास तरह का मौसम होता है किसी खास महीने में, और साल दर साल ये उस महीने में उसी तरह का मौसम आता है, तो ये औसत जो मौसम होता है वो मिलकर जलवायु या क्लाइमेट का निर्माण करता है. तो इसी को हम कहते हैं कि क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशन. मतलब औसत जलवायु की जो दशा होती है, औसत जो मौसम की दशा होती है किसी बड़े इलाके में, किसी बड़े क्षेत्र में, किसी जगह का नहीं, किसी बड़े इलाके, किसी क्षेत्र में जो साल दर साल जो औसत मौसम की दशा होती है वो एक तरह का खास तरह की जलवायु बनाती है, और उसी की तरह से उसका नाम भी पड़ता है. जैसे इंडिया के क्लाइमेट का नाम है ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट. तो और ये ज्योग्राफी के हिसाब से कम 35 ईयर्स तक इस तरह का होना चाहिए एवरेज वेदर कंडीशन, और उसमें थोड़ा सा आपका वेरिएशन भी हो सकता है. किसी खास मंथ में अगर गर्मी का मौसम चल रहा है तो बड़ा सा इलाका में सभी जगह गर्मी का मौसम मिलेगा, लेकिन उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है, टेम्परेचर में हो सकता है, इसलिए इसमें थोड़ा वेरिएशन भी इंक्लूडेड होता है. इसलिए परिभाषा में लिखा गया है कि क्लाइमेट रेफर्स टू द एवरेज वेदर कंडीशन विथ वेरिएशन ओवर ए लार्ज एरिया फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम. एटलीस्ट 35 ईयर्स होता है, यहाँ 30 ईयर्स लिखा हुआ है. तो generally climate refers to the average weather condition of a given area over a large area for at least 35 years, and the elements of climates are
3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स आर देयर। क्या चीज़ से मिलकर क्लाइमेट बनता है, जलवायु क्या चीज़ से मिलकर बनता है? तो इसमें पहला आता है टेम्परेचर, दूसरा आता है वाटर वेपर और तीसरा आता है विंड। तो विंड की क्या पोजीशन रहती है उस मौसम में, टेम्परेचर किस तरह का रहता है, और फिर आपका मतलब वाटर वेपर, मतलब वाटर वेपर पे ही सारा चीज़ निर्भर करता है कि क्लाउड बनेगा, वर्षा होगी, कि बर्फबारी होगी, कि कोहरा बनेगा, कि कुहासा बनेगा। इसके लिए हवा में वाटर वेपर होना चाहिए, और वो दिखाई नहीं पड़ता है, वो वायुमंडल में ही रहता है, लेकिन टेम्परेचर के अनुसार उसका रूप बदलते रहता है। तो वाटर वेपर, wind and temperature, these are 3 elements which forms the climate as well as weather। और संसार में मतलब टिवार्था के अनुसार 12 तरह के क्लाइमेट हैं, जिसमें मानसून टाइप ऑफ व्यू क्लाइमेट आता है, आपका डेजर्ट टाइप ऑफ व्यू क्लाइमेट आता है, उसमें आपका मेडिटेरियन टाइप ऑफ व्यू क्लाइमेट आता है। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स होते हैं वर्ल्ड में। देन द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज वेदर? वेदर क्या है? तो वेदर रेफर्स टू द स्टेट ऑफ एटमोस्फियर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। किसी भी समय और किसी भी जगह, किसी भी समय और किसी भी जगह आकाश की जो स्थिति होती है, वायुमंडल की जो स्थिति होती है, किस तरह की स्थिति, मतलब वहाँ टेम्परेचर कैसा है, वहाँ का वाटर वेपर का मतलब नमी की क्या पोजीशन है, और वहाँ विंड का क्या कंडीशन है। ये 3 चीज़ का जो पोजीशन होता है वैसा ही वहाँ का वो मौसम बोला जाता है। आप अभी घर से बाहर निकलिए और आकाश की तरफ देखिए, तो या बाहर निकलिए और वातावरण में महसूस कीजिए जिस तरह का टेम्परेचर है, ठंड मतलब कम टेम्परेचर है और धूप नहीं है, हवा चल रही है, नमी तो खैर महसूस नहीं होगी, तो कोहरा कुहासा रहेगा तो नमी है। तो ये 3 चीज़ रहने से कहेंगे कि आज का मौसम थोड़ा ठंड मौसम है। जिस दिन काफ़ी धूप खिली रहेगी तो कहेंगे कि आज थोड़ा सा गर्मी महसूस हो रही है। तो मौसम जो होता है किसी भी प्लेस का, किसी भी समय जो आकाश की स्थिति होती है, एटमॉस्फेयर की जो स्थिति होती है, उसी को हम वहाँ का मौसम कहते हैं। एट एनी पॉइंट, एट एनी प्लेस इन द वर्ल्ड, इन टर्म्स ऑफ अवेलेबल टेम्परेचर, वाटर वेपर एंड विंड कंडीशन। As far as the elements of climate and weather are concerned, they are both same। कहने का मतलब कि जो क्लाइमेट क्या चीज़ से मिलकर बनता है, किस चीज़ की दशा को हम देखकर कहेंगे इस तरह का क्लाइमेट है, किस चीज़ की दशा को देखकर हम कहेंगे यहाँ का मौसम ऐसा है। तो उसका जो एलिमेंट्स है जिससे वो मिलकर बनता है उसमें वही आते हैं, वाटर वेपर, टेम्परेचर एंड विंड कंडीशन, फिर क्लाउडनेस भी है, प्रेसिपिटेशंस है, ये सब भी थोड़ा उसमें इंक्लूडेड है, लेकिन मेनली आपको 3 याद रखना है, टेम्परेचर, विंड एंड ह्यूमिडिटी। Then you already know that the term used for Indian climate is known as मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। भारत की जलवायु को मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट कहते हैं। तो ये मानसून क्या है और मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इंडिया का क्यों कहते हैं, वाई डू कॉल इट ए मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, इसका क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। So first all of us should have knowledge about the word monsoon, from where did this word originated and what does it mean. The word monsoon is derived from Arabic word mausim, which literally means season. Monsoon refers to the seasonal reversal in the wind direction during a year. तो monsoon generally is a Arabic word। प्राचीन समय में बहुत समय पहले से व्यापारी लोग भारत में आते रहते थे, तो अरब देश के जो व्यापारी आते थे तो वो इंडिया में इस पवन को, विंड को बहते हुए देखते थे, तो कहते थे कि ये मानसून विंड है। और मानसून विंड, मानसून का अरबिक वर्ड से निकला है और इसका मतलब होता है मौसम, लेकिन यहाँ पर मानसून का मतलब होगा ऐसी हवा जो मौसम बदलने के साथ अपनी बहने की दिशा को भी बदल दे। वैसे पवन जो हैं, विंड जो हैं, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलते हैं, लेकिन अगर मौसम चेंज होता है तो कभी वो उत्तर दिशा से आ रहे हैं, मौसम चेंज हो गया तो कभी वो पश्चिम दिशा से आ रही हैं। तो मौसम बदलने के साथ अगर हवा का रुख भी बदल जाए तो ऐसे विंड को ही मानसून विंड कहते हैं। तो मानसून विंड रेफर्स टू द रिवर्सल ऑफ सच टाइप्स ऑफ विंड्स विच चेंज देयर डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू चेंज इन सीजन। वैसे पवन, वैसी हवा जो मौसम बदलने के साथ ही अपने बदलने की दिशा में, डायरेक्शन में चेंजिंग ला दे, तो उसे हम मानसून विंड कहते हैं। और भारत में 2 तरह के मानसून विंड बहते हैं, एक नॉर्थ ईस्ट मानसून और दूसरा साउथ वेस्ट मानसून। नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है वो मतलब
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी ये बहता है, और उसके बाद फिर अपना बाद में साउथ वेस्ट मानसून बहता है। तो साउथ वेस्ट मानसून से ही हमारे देश में बारिश का मौसम आता है। The world is divided into a number of climatic regions. The climate of India is described as the monsoon type. तो मैंने पहले ही बता चुका है कि वर्ल्ड को अलग अलग क्लाइमेटिक रीजन में बांटा गया है। कहीं टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट है जो कोल्ड होता है, कहीं सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट है, कहीं डेजर्ट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट है, कहीं मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है, कहीं चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट है। और इंडिया में जो क्लाइमेट मिलता है उसे मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट कहते हैं। और ये केवल इंडिया में ही नहीं मिलता है, ये साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में, मतलब कि श्रीलंका वगैरह, इंडोनेशिया, फिलीपींस वगैरह, ये मतलब जापान, चाइना तक चला जाता है। तो साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में जो क्लाइमेट मिलता है उसे मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट कहते हैं। बट देयर आर परसेप्टेबल रीजनल वेरिएशन इन क्लाइमेट कंडीशन विद इन द कंट्री। अब आप सोचिएगा कि एक क्लाइमेट है मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, तो जितने बड़े इलाके में ये क्लाइमेट मिल रहा है सब जगह का किसी खास महीने में एक ही जैसा टेम्परेचर होना चाहिए, एक ही जैसी बारिश होनी चाहिए। चूँकि एवरेज वेदर कंडीशन को ही हम क्लाइमेट कहते हैं, तो एवरेज वेदर कंडीशन सभी जगह का सेम होना चाहिए उस इलाके का, तभी तो उसका नाम एक खास क्लाइमेट नाम पड़ा है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, उसमें कुछ रीजनल वेरिएशंस में मिलते हैं। टू इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स, टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन ऑफन वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड सीजन टू सीजन। तो देखिए, टेम्परेचर का मतलब होता है तापमान, और प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है वर्षण। वर्षण का मतलब वर्षा नहीं, प्रेसिपिटेशन का मतलब हुआ कि आकाश में जो नमी है, वाटर वेपर है, वो किस रूप में धरती पर नीचे आ रहा है। जो नमी है वो नमी जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, उसका कंडेंसेशन होगा, और कंडेंसेशन होने पर वो जल के बूंद के रूप में नीचे आएगा तो उसका नाम रेनफॉल होगा। अगर वो हवा में ही छोटी छोटी बूंदों के रूप में लटका रहेगा तो उसे फॉग भी कह सकते हैं, मिस्ट भी कह सकते हैं, कुहरा कुहासा कह सकते हैं। अगर वो कंडेंसेशन मतलब अब 0 डिग्री टेम्परेचर के नीचे हो गया तो वो बर्फ़ के रूप में बदल जाएगा, तो हेल स्टोन भी हो सकता है, बर्फबारी भी हो सकती है, स्नोफॉल भी हो सकता है, तुषारपात भी हो सकता है। तो ये जो कंडेंसेशन के डिफरेंट फॉर्म्स हैं उसी को एज ए होल हम लोग प्रेसिपिटेशन कहते हैं। प्रेसिपिटेशन में वर्षा भी आएगा, कोहरा भी आएगा, कुहासा भी आएगा, ओलावृष्टि भी आएगी, बर्फबारी भी आएगी। मतलब आकाश में, वायुमंडल में जो ह्यूमिडिटी है वो कंडेंस्ड होकर किस रूप में नीचे आती है, और वो जिस रूप में भी आए सभी को हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। व्हेन इट कम्स इन फॉर्म ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, जब ये जल की छोटी छोटी बूंदों के रूप में नीचे आती है तब उसे हम रेनफॉल कहते हैं। कभी कभी बहुत छोटी छोटी बूंदों के आदमी आती है, जिसे हम लोग मतलब ड्रिजलिंग भी कह सकते हैं, बूंदाबांदी भी कह सकते हैं। कभी कभी लोग यहाँ पर देहाती वर्ड में कहते हैं झिसी पड़ रहा है, तो उसका इंटेंसिटी चेंज भी हो सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अच्छा, इंडिया का जो क्लाइमेट है उसका नाम मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, लेकिन उसको हम ट्रॉपिकल मानसून कहते हैं, क्योंकि इंडिया जो है उसका लोकेशन 8 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से 37 डिग्री मतलब नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में है। तो ये ट्रॉपिक्स ऑफ मतलब के बीच में है, तो इसलिए इसको ट्रॉपिकल भी कहते हैं, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। तो इसका मीनिंग हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कि किस तरह से इंडियन मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट में रीजनल वेरिएशन मिलते हैं। ओके।